Welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Business Law. Hello learners, today we will talk about Indian Companies Act 2013 Part 1. Under that, we will focus on Memorandum of Association. So let's go further and let's know about the introduction and the official definition of Memorandum of Association, along with the purpose, forms, and the various clauses of Memorandum of Association. So let's go further and first focus on the introduction of Memorandum of Association. MOA, that is Memorandum of Association of a company, is a fundamental document. It is the most important document that has to be made at the time of incorporation of a company. Memorandum of Association कंपनी के स्थापित होते समय, इनकॉर्पोरेट होते समय, रजिस्टर होते समय फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. इसे रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज के द्वारा फाइल किया जाता है यानी फिल किया जाता है. This is a document that regulates the company's external affairs and complements the Article of Association, which covers the company's internal constitutions. When we talk about Memorandum of Association, it is basically associated with the external affairs of a company. Fundamental document. It gives a complete detailed information about the company to the outsiders and to the people who are associated with the company in any form. So हम कह सकते हैं कि Memorandum of Association और MOA एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रजिस्टर होते समय जरूरी होता है. इसमें कंपनी के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी होती है. चलिए ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ चलते हैं, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1. मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी as originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. What this particular definition of memorandum of association talks about, that जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या MOA है वो कंपनी के रजिस्टर होते समय बनता है. यहाँ तक कि कंपनी बनने के बाद या कंपनी रजिस्टर होने के बाद जब भी कंपनी को लगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है या उसमें कुछ एडिशन करना है या डिडक्शन करना है, कंपनी वो भी कर सकती है. दैट अल्टरेशन इज पॉसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की सारी जानकारी आउटसाइडर्स को देगी. चलिए आगे चलते हैं एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के. पहला सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है दैट द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर शैल नो द पर्पस. जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी से एसोसिएटेड हैं, जो कि कंपनी के ओनर्स हैं, दे शुड नो द पर्पस व्हाई द कंपनी इज फॉर्म्ड. So first and the most important objective of a memorandum of association becomes the giving the information of a company to its shareholders. Along with that, to make outsiders know the object of the company, why the company is formed, what is the purpose of framing that particular company, why that company is working in a particular field, what is the capital of a company, and many more things. These things and these informations will be given to outsiders of a company through मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो अगर हम पर्पस की बात करें MOA की, तो पहला पर्पस होता है शेयर होल्डर को कंपनी के फॉर्मेशन और कंपनी के काम की सारी जानकारी देना, और दूसरा पर्पस होता है कंपनी के आउटसाइडर्स को ये पूरी बातें बताना कि कंपनी में कितना कैपिटल है, कंपनी का सब्सक्राइबर्स कौन है, कंपनी का नाम ऑफ कोर्स क्या है, और कंपनी क्या क्या और किस फील्ड में करती है. So this is the two most important purpose of memorandum of association. Let's go further and see अगर किसी को memorandum of association अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए बनाना है तो उसे कौन सा फॉर्म फिल करना होगा. Now on your screen you can see that two things are important.
फॉर्म की बात करें तो देयर विल बी 5 टेबल्स. फॉर्म जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 है, उसमें शेड्यूल 1 में 5 टेबल दिए गए हैं. शेड्यूल 1 में 5 टेबल दिए गए हैं. दैट इज टेबल 1, A, B, C, D एंड टेबल E. ये 5 टेबल जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, इन 5 टेबल में जो जो जानकारियां लिखी गई हैं, जो जो इंफॉर्मेशन मांगे गए हैं, उस फॉर्म को उसी फॉर्मेट में फिल करके हमें रजिस्ट्रार के पास लेके जाना होता है MOA के लिए. दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम. प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम मींस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल द लॉज, ऑल द लीगल पॉलिसीज, उन सब पॉलिसीज को भी प्रॉपर फॉलो करना होगा. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द फॉर्म्स कि MOA बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, तो शेड्यूल 1 के इन 5 टेबल की जरूरत होगी एंड प्रोविजंस यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि मेमोरेंडम बनाने के लिए चाहिए होते हैं, उनकी जरूरत होती है. So let's go further and see the important part of Memorandum of Association. Without the clauses, there is no meaning of Memorandum of Association. Clauses under Section 4 of Indian Companies Act 2013 Part 1. As MOA is an important document which outlines the company's law under which a company will work and function. It has several clauses which define some pertinent aspects under provisions of the Companies Act 2013, which are as follows. Now on your screen you can see the 6 important clauses that we have to study in this lecture. Students, clauses जो है हमारे, वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक हिस्सा है. पॉइंटर्स आप कह सकते हो. MOA बनाते समय ये 6 पॉइंट आपके MOA में होने ही चाहिए. ये 6 पॉइंट आपको बताएंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होना चाहिए. तो चलिए, each point we will see one by one and we will see how these points are inculcated under memorandum of association. So let's go further and focus on the first one, that is name clause. What is name clause? हर एक कंपनी का एक नाम होता है. वो नाम किसी और कंपनी के जैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि वो नाम होना ही नहीं चाहिए. अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करती हूँ और मैं अपनी कंपनी का नाम रखती हूँ वेद, तो आप अपनी कंपनी का नाम वेद नहीं रख सकते. आपको अपनी कंपनी का नाम कुछ और रखना होगा. सो अगर जो कंपनियां होती हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं. चलिए, ये आपके स्क्रीन पे दिए हुए 4 पॉइंट है जो कि अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करने के समय आपको सोचना है. पहला है, नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल. जो नाम है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए. मैंने अपनी कंपनी का नाम पूजा रखा है तो आप अपनी कंपनी का नाम पूजा नहीं रख सकते, नाम सेम नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ हम एक बात पे फोकस करेंगे, नेम कैन बी अ क्लोज सब्स्टिट्यूट. जैसे कि एग्जाम्पल दूं, जो नाम है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, थोड़े बहुत सेम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाटा, बाटा. टाटा एंड बाटा सिमिलर साउंड करते हैं, बट ऑफ कोर्स दोनों बहुत ही अलग अलग कंपनियां हैं. तो नेम जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं होने चाहिए. दूसरा है यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड. हर एक कंपनी को जो वर्ड है लिमिटेड लगाना, उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय हमारे अदर थिंग्स. तो ये चीज है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ये सारी चीजें सोच के लिमिटेड वर्ड यूज करना चाहिए. थर्ड है, द नेम मस्ट बी पेंटेड एंड प्रिंटेड. जो नाम है कंपनी का वो पेंटेड होना चाहिए. पेंटेड यानी पेंट ब्रश वगैरह से या बड़े से बैनर पे छपवा के आप अपने हेड ऑफिस में और दूसरे जो एक्स्ट्रा ऑफिसेस आपने अलग अलग स्टेट में खोल रखे हैं, वहां पे आपको आपका जो नाम है कंपनी का लोगो के साथ, ध्यान रखिएगा, आपके जो कंपनी का नाम है लोगो के साथ यानी पेंटेड होना चाहिए, या फिर आपका बड़े बैनर वगैरह पे छपा हुआ होना चाहिए और आपके हेड ऑफिस में लगा ही होना चाहिए. प्रिंटेड, आपके
ऑफिस का, आपकी कंपनी का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी से बाहर जाता है और वो अगर लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी डॉक्यूमेंट है, तो उस पे भी आपका जो नाम है, आपकी कंपनी का जो लोगो है, वो प्रिंटेड होना चाहिए। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द वर्ड the painted and printed. Let's go further and see the fourth one. There is a prohibition मतलब रोक है, उसको नहीं कर सकते आप। prohibition on the use of a certain words. अब ये का किसने कहा है? ये कहा है द एम्ब्लेम एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 ने। ये जो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 है, वो क्या कहती है कि आप अपनी कंपनी का नाम किसी बड़ी और चीज से नहीं रख सकते। क्या है वो बड़ी चीज? यूएनओ। आपके स्क्रीन पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कल को आप अचानक से उठ के अपनी कंपनी का नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिस्किट्स एंड फरसान, ये ऐसा करके आप नहीं रख सकते, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ी established organizations हैं, आप उसके सिमिलर नाम्स नहीं रख सकते। WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब भी नाम आप नहीं रख सकते। इंडिया का जो फ्लैग है उसे आप अपना लोगो नहीं रख सकते। ओके, सो ये सारी चीजें हैं कि आपको ध्यान रखनी है कि अपना जब आप नाम रख रहे हो तो वो किसी बड़े स्टैब्लिशमेंट से स्पेसिफाई नहीं करती हो, अदरवाइज आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950. This was the fourth point that you have to pay attention and keep in your mind while deciding your name of a company. And जो नाम होता है कंपनी का वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, वो प्राथमिक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। और ऑफ कोर्स नेम इज द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर अ कंपनी। लेट्स गो फर्दर एंड सी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, पहला ऑफिस होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में ही आप देख सकते हैं कि इट इज कंपल्सरी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। जब आप अपना एमओए बनाओगे तो पहले पॉइंट लिखोगे आप अपना नाम, फिर लिखोगे अपना एड्रेस, ऑफिस एड्रेस। तो वो ऑफिस एड्रेस लिखना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है। देन यू हैव योर एमओए मेंशंस द स्टेट एंड द प्लेस। ऑफ कोर्स आप अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हो तो आप अपना स्टेट एंड प्लेस तो मेंशन करोगे ही। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन डेट के विद इन 15 डेज में, इनकॉर्पोरेट होने के 15 दिन के अंदर अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया है, देन आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपके ऊपर पेनाल्टीज लगेंगी। दैट पेनाल्टी इज वेरी हाई बट नॉट मोर देन 1 लाख। दैट पेनाल्टी इज 1000 रुपीज पर डे। यानी अगर आपने 15 दिन के अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एमओए में नहीं लिखा है तो आपको 16वें दिन से 1000 रुपया हर दिन पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका भी ध्यान रखा है कि जो पेनाल्टी है वो 1 लाख से ऊपर ना जाए। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। Object clause is very important. The investors, the primary owners of a company have to give his objective. See, without objective किसी भी काम को करने का कोई मतलब नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव ऑब्जेक्टिव। सेम वे इफ यू आर ओपनिंग योर कंपनी, ऑफकोर्स आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, पब्लिक की हेल्प करना, मनी अर्न करना। ऑफकोर्स मनी अर्न करना इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, राइट? अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और इसके लिए आपको अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स डालने पड़ेंगे। एवरी कंपनी हैव टू स्पेसिफाई देयर ऑब्जेक्टिव्स, ओके, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सी आपको फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है, देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव को अप्रूव करने का
अधिकार है वो डिफरेंट अथॉरिटीज को है। अगर आप एक LIC या फिर इंश्योरेंस का कंपनी खोलना चाहते हो तो लोन एंड कैपिटल फंडिंग के थ्रू आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के थ्रू आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस के लिए आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा, दैट इज IRDAI। तो ये जो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लॉज दिया गया है इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हो तो आपको 15 या 20 ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ेंगे कि आप ये कंपनी क्यों खोल रहे हो और आपका मोटिव क्या है। अब now let's go further and see our next clause, that is liability clause. Liability clause generally specifies the liability of the members of a company, that what is their liability and how the company is limited. Liability can be limited or unlimited, it can be both, which means at the time of winding up of the company, the people who are involved in a company, how their liability is associated with the company. If I talk generally in terms of a limited liability, it will be of two types. That is, first one, limited by shares. And if I talk about from the second point of view, it will be limited by guarantee. So both have their own meaning. So if we go toward the first one, it means that limited by shares is companies and the characteristics with an authorized share capital of a specific amount, and liability of each member of such is limited to the unpaid amount of shares and the premiums and the etc. So it simply means that जब कंपनी बंद होगी उस समय जो कंपनी में लोग होंगे वो लोग कंपनी की तरफ उतने ही शेयर्स के लिए लाइबल होंगे जितने उनके अनपेड शेयर्स होंगे। So this is the meaning of limited by shares. If I talk about limited by guarantee, limited by guarantee simply means that the members, the various members or the partners are required to meet the needs of a company in varied aspects or depths without any limit or their liability at the time of liquidation. Limited by guarantee, they are the guarantors of a company and they have to be liable for the full debt. ओके जितना भी कंपनी का डेप्ट होगा, जितनी भी कंपनी की लाइबिलिटी होगी, वे लोग कंपनी की लाइबिलिटी के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। Let's see what is unlimited liability. Unlimited liability means the people of a company, the people who are working or the partners, are required to meet the needs of a company in various aspects without debts, without any limit, or their liability at the time of liquidation. Their liability to cover its debt fully. They are not liable. Their liability is completely unlimited. We cannot say they are not liable. Their liability is completely unlimited. Let's go further. This was a liability clause. Let's go further and let's check out the subscription clause. Subscription clause generally gives the name and the addresses of the people who are the first subscribers of a company. जिस company के first owners होते हैं, first investors होते हैं, the primary people who are associated with the company, they are called the subscribers of the company. जो कंपनी के साथ सबसे पहले अटैच होते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स को कंपनी का एटलीस्ट मिनिमम एक शेयर तो खरीदना ही होता है। बट हर एक कंपनी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने कंपलसरी हैं। तीसरे पॉइंट में देखिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, तभी आप सब्सक्राइबर होगे यानी प्राइमरी ओनर्स बनोगे। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे, तब आप सब्सक्राइबर बनते हो, प्राइमरी ओनर। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो 1 शेयर तो खरीदना ही पड़ेगा, तभी आप सब्सक्राइबर बनोगे, दैट इज द प्राइमरी ओनर्स ऑफ अ कंपनी। तो हमारे जो MOA है उसमें एक सब्सक्राइबर क्लॉज होता है जहां पे जो प्राइमरी ओनर्स है, प्राइमरी सब्सक्राइबर्स है, उनके नाम एंड उनके एड्रेस को लिखना होता है, एक प्रॉपर सेक्शन होता है उसके लिए, दैट इज सब्सक्राइबर्स क्लॉज। लेट्स गो फर्दर एंड सी द कैपिटल क्लॉज। व्हाट दिस कैपिटल क्लॉज इज ऑल अबाउट। कंपनी का कैपिटल कितना है, जितना आपके MOA में यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लिखवाते हो कि कंपनी का कैपिटल इतना होगा, कंपनी इतने एक्सपेंस करेगी, कंपनी सालाना
100 शेयर मार्केट में लिखेगी, ऑफ कोर्स 100 शेयर्स नहीं मार्केट में आते हैं, लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं। तो कंपनी मार्केट में 100 शेयर साल में लेके आएगी, तो कंपनी को 100 शेयर ही मार्केट में लेके आने हैं, उससे ज्यादा नहीं लाने हैं। शेयर्स मार्केट में आने का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो पब्लिक से पैसे ले रही है, उनको ओनर बनाना चाहती है। तो ये काम कंपनी एक लिमिट तक ही कर सकती है, और ये जो लिमिट है, ध्यान देना, ये जो लिमिट है ये आपके MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि कंपनी सालाना इतना ही पैसा पब्लिक से डिमांड करेगी, यानी शेयर्स इतने ही पैसों का लेगी। ये जो MOA है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, इफ सेकंड पॉइंट में, if company authorized capital is 10 lakh and paid up at the time of incorporation is 1 lakh, company can raise its capital up to 9 lakh but nothing more than 9 lakhs. आसान शब्दों में इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूं कि MOA में आपने लिखवाया है कि 10 लाख रुपए तक मैं शेयर्स मार्केट में रेस करूंगा, यानी 10 लाख रुपए तक मैं लोगों से पैसे एज अ शेयर्स मंगाऊंगा। उसमें से आपने 1 लाख का शेयर करवा लिया है, 1 लाख का पेड अप कैपिटल का यूज कर लिया है आपने, बचे 9 लाख रुपीज, यानी आप रिमेनिंग 9 लाख रुपीज तक रेज कर सकते हो। 10 लाख से ऊपर 1 रुपया भी आप मार्केट में शेयर्स नहीं ला सकती। ये मतलब होता है आपके ऑथोराइज कैपिटल का, और ये ऑथोराइज कैपिटल आपके MOA में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बट यहाँ पे एक और बात है कि कंपनीज एक्ट जो हमारा नया 2013 का अमेंडेड कंपनीज एक्ट है, उसमें इंडिया में एक कंपल्सरी लिमिट नहीं रखी गई है ऑथोराइज कैपिटल के लिए। आप जितना भी ऑथोराइज कैपिटल, अज्यूम्ड कैपिटल कहें तो गलत नहीं होगा, एक ऑथोराइज कैपिटल रख सकते हो। अगर जनरली कैपिटल की बात की जाए तो देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ कैपिटल्स: रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। Thank you for attending today's lecture. I see you in another lecture. Till then, take care.